Assalamu alaikum everyone. Hopefully I am audible. Please anyone confirm in the chat if I am audible. जी सर, आप ऑडिबल हैं, आप शुरू कर सकते। Thank you. Actually today our one trainer is not well. He got flu and fever, so I am only the presenter here today. Please bear with me if I made any unusual mistake. So today our second day of reading section, and today we will discuss about some tips and traps which are being used in first paragraph related things, like there are three main paragraph and questions are organized as 1 to 13, then 14 to 27, and the last one is 28 to 40. So we will today discuss about first paragraph related thing 1 to 13 and all tips and tricks, and we'll also use a mock or practice test as well. Yesterday we discussed about the all types of questions which are used in reading section. There were around 14 to 15 types, and also I made this guide specifically for this session, and it is also pinned in the Slack. Anyone can download it and get help. There are four module and all tips and tricks as well. There are more than 100 words with vocabulary, and for vocabulary, and also with the context of usage. Sometimes we use the word in that context where that word is not fit as well. So I specifically made that 1,000 words for this in that we will use in the context where we have to use. Also otherwise as well, also some other guides I made yesterday uh, for vocabulary related things, because we are I am also uh, feel lack in vocabulary, so I made this for the help of others as well. All the previous books 1 to 19 IELTS books, I get help from these books, and made a vocabulary guide from these 19 books for our help. So if we just go through these words, and we will see that these words are not C1 and C2 level words. 95% words are B2 and B1 level words. So it is not a it is a myth, I think I can say, that we have to use C1 and C2 level words. I will also share that guide in the Slack today. So कल हमने जो डिस्कस किया था कि यहाँ पे दो तरह के लेवल होते हैं, एकेडमिक एंड जनरल। हमने एकेडमिक को ही देखना है, जनरल को हमने नहीं देखना। तो उसके अकॉर्डिंग हम
आज थोड़ी-सी कुछ मज़ीद कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे, उन पे प्रैक्टिस करेंगे और जो फर्स्ट पार्ट है बुक 20 का इग्नोवेट से, उसका फर्स्ट पार्ट भी हम करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि कैस किस तरह का टेस्ट होता है और उसमें कहाँ पे हमें कन्फ्यूजन आ रही होती हैं। जहाँ पे ये कुछ कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स लिखी हुई हैं, जो हम अक्सर इसमें कर रहे होते हैं रीडिंग में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सम पीपल थिंक एक्स, otherwise think y, discuss both views and let me check I'm on the right sorry it is writing, have to use reading. Meanwhile, if you have any question, please do ask. If anyone wants to get good marks, I can say this guide really help, because I this guide I made for my own. सो अगर कोई चीज़ आप अपने लिए करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वो बेहतरीन हो। लेट मी चेक नंबर पे। मीनवाइल मैम रबिया, आप अगर हैं तो आप अगर कोई सजेशन देना चाहें तो आप कर सकती हैं। मैं ज़रा देख लूँ, इसमें मुझे मिल नहीं रहा, रीडिंग वाला मैंने ऐड किया था। सॉरी। जी सर, बेशक आप उतनी देर करते रहें, तब तक हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं अगर कोई क्वेश्चंस हैं। और कल की क्लास में अटेंड नहीं कर पाई ड्यू टू शोर था, तो कल मुझे आप बताइएगा रीडिंग के हवाले से क्या कल डिस्कस किया। मैम रीडिंग के हवाले से हमने सिर्फ टिप्स ही डिस्कस किए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं। देयर आर अराउंड 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन रीडिंग, so we discussed all that types and how to tackle them, how can we get answer for each type. ओके सर, तो सर आज हमें फिर जो मॉक है टेस्ट सिमुलेशन है वो कर लेना चाहिए। एक पार्ट रीडिंग का हम उधर से स्टार्ट कर लेते हैं। जी जी, वही करेंगे। बस ये कुछ और चीज़ें थी जो उसमें पार्ट वन के अकॉर्डिंग मैंने सेपरेट की हुई थी, तो वो मैं ओके। चाह रहा था एक दफ़ा हम डिस्कस कर लेते, ताकि हो सकता है कल की चीज़ें हम लोगों को याद नहीं भी रहती, तो मज़ीद हम थोड़ा-सा उनको देख लें। एग्जैक्टली सर। जी, स्क्रीन वाला है? जी सर, विजिबल आप। जी, थैंक यू। ओके, सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ होते हैं, उनके हवाले से हमें एक कन्फ्यूजन रहती है कि वो जो बोल रहे होते हैं या उसमें लिखा होता है, हमें रीडिंग में ऐसा फ़ील हो रहा था कि सारे ऑप्शंस ठीक हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, कुछ टिप्स होते हैं जो उसमें दिए हुए होते हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ करते हैं और ट्रैप्स जो हैं उनको हमने कैसे फाइंड करना है।
फर्स्ट क्या है, स्ट्रेटजी क्या है कि रीड द क्वेश्चन, स्टेम केयरफुली बिफोर लुकिंग एट ऑप्शंस। कल भी बताया था कि कुछ ऐसी ऑप्शंस होंगी जिनके लिए हमें पैराग्राफ को पूरा स्कैन करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन के लिए हमें सिर्फ स्किम करना पड़ता है। जैसे अगर किसी का कोई आइडिया लेना हो कोई नाम के हवाले से, जब हम रीड हेडिंग मैच कर रहे होते हैं, तो उसमें हम सिर्फ आइडिया ले रहे होते हैं और उसके लिए सिर्फ कीवर्ड्स देखते हैं। जबकि हम जब उसको मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से हम क्वेश्चन कर रहे हो, सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हमें फिर पूरा एक स्कैनिंग करनी पड़ती है उस पैराग्राफ की। हाँ, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो उस पैसेज में दिए हुए हैं। स्पेसिफिकली हम कल भी डिस्कस किया, नाउन्स, वर्ब एंड एडजेक्टिव्स। मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव्स और वर्ब्स और नाउन ही होते हैं। बाकी छोटी जो जैसे प्रेपोजिशन है या इस तरह के एडवर्ब्स हैं, ये बहुत ही क्लियर होते हैं, शाज़ और नादिर ही कोई आए तो आए, नहीं तो नहीं होते। तो हमें ये देखना होगा कि अगर नाउन दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है कोई वर्ब हो, और अगर वर्ब भी दिया हुआ है और क्लॉज है बनी हुई, तो इसका मतलब है कि एक क्लॉज में उन्होंने दोनों चीजें दे दी हैं, दूसरी क्लॉज में हम देखें कि क्या वहां पे नाउन यूज होना है या वर्ब यूज होना है। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें माइंड में रखना होगा उस दौरान जब हम आंसरिंग कर रहे होंगे एमसीक्यूज की, कि हमें फिर पता होगा कि सही कौन सा वाला देखना है। एलिमिनेट ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर, जो रॉन्ग आंसर होंगे हम उनको पहले एलिमिनेट करेंगे। जहाँ पे कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हुई है या वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डेट्स बाद औकात होती हैं तो वो एक एक फिगर से आगे पीछे डेट कर देते हैं, तो उसको भी हमें देखना होगा कि रॉन्ग आंसर को हम क्रॉस लगाते जाएं। फॉर पैराफ्रेजिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके एमसीक्यूज हैं और जो हेडिंग मैचिंग है उसमें पैराफ्रेजिंग ही होगी। अदरवाइज बहुत ही रेयर चांस है कि आपको एग्जैक्ट नाउन या वर्ब मिले। डोंट यूज एनी आंसर जस्ट बिकॉज इट कंटेन्स द सेम वर्ड। तो कल भी डिस्कस किया था कि जहाँ पे आपको सेम वर्ड फील हो रहा हो तो समझ लो वहाँ पे कोई ना कोई ट्रैप जरूर है। वो सेम वर्ड दिया जरूर होगा, लेकिन वो सेम वर्ड किसी और कॉन्टेक्स्ट में वहां पे दिया होगा, जबकि आपसे पूछा कोई और कॉन्टेक्स्ट जा रहा होता है। ट्रैप्स क्या होते हैं इसमें, डिस्ट्रैक्टर्स यूज एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज बट विद रॉन्ग मीनिंग। अभी जैसे मैंने बताया किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड बताया जा रहा होता है, जबकि हमें चाहिए कुछ और होता है। ऑप्शन दैट आर partially correct but not the complete answer। तो जहाँ पे आप ऑप्शन पार्शली करेक्ट हों लेकिन कंप्लीट ना हो तो वो भी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। टाइम वेस्टिंग बाय रीडिंग ऑल ऑप्शंस बिफोर फाइंडिंग द रेलेवेंट सेक्शन। बिफोर फाइंडिंग द रेलेवेंट सेक्शन, हम ऐसे ही सबको पढ़ना जब शुरू कर देते हैं तो हम टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो हमें कीवर्ड जब हाईलाइट कर लिए होंगे तो फिर हम डायरेक्ट पैसेज पे जाएंगे, ये कीवर्ड है, यहाँ पे कीवर्ड इससे मिलता जुलता वर्ड होना चाहिए, उसको देखेंगे। तो उस दौरान हमारा टाइम बचेगा, हम जल्दी से जल्दी। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये ऑर्डर वाइज आ रहे होते हैं, ये बगैर ऑर्डर के नहीं होते, ये ऑर्डर में ही आ रहे होते हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और हेडिंग मैच हैं, ये वाले बाज अक्सर जो होता है बगैर ऑर्डर के होते हैं, कि ये एक पैराग्राफ से आ रहा है, कोई तीसरे से आ रहा है, कोई पांचवे से आ रहा है, होता है। नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स, यस नो। एक मैं टिप सुन रहा था, वहां पे बताया गया था कि बच्चे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि ट्रू फॉल्स जहाँ पे लिखना है वहां पे हम यस नो लिख देते हैं, और जहाँ पे यस नो लिखना है वहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख देते हैं। तो इससे भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। अगर इवन दो वो ट्रू और हमने यस लिखा है लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि वहां पे ट्रू लिखना है, यस नहीं लिखना। और जहाँ पे फॉल्स लिखना है वहां पे अगर नो लिख देंगे, लॉजिकली तो हमें लग रहा है कि वो ठीक है, कि नहीं फॉल्स है तो नो ही आएगा, लेकिन वहां पे उसके अकॉर्डिंग वहां पे फॉल्स ही लिखना है।
और जहाँ पे यस नो लिखना है वहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं लिखना। तो इससे भी बहुत सारी कुछ बच्चे कर जाते हैं ऐसी। हम बहुत मैच्योर हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और हम इसको अच्छे तरीके से जो ऊपर हेडिंग वो इंस्ट्रक्शन लिखी हैं उनको लाजमी देख के करेंगे। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा होता है? डिसाइड इफ स्टेटमेंट्स एग्री विद, कॉन्ट्राडिक्ट और नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। बाद औक़ात इंफॉर्मेशन दी होती है लेकिन वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती जो हमें चाहिए होती है। थोड़ी सी दी होगी, आगे कुछ और कॉन्टेक्स्ट में बात कर देंगे तो वो नॉट गिवन में आएगी, क्योंकि वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी गई। क्रिटिकल डिस्टिंक्शंस, स्टेटमेंट एग्रीज विद पैसेज इंफॉर्मेशन, ये कल भी पढ़ा था हमने। स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट्स विद द पैसेज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज नॉट मेंशन, यू कैन नॉट एज्यूम एनीथिंग। हम अपने से एज्यूम नहीं कर सकते। हमें वहाँ पे अगर कुछ दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया तो नो लिखेंगे, ये फॉल्स लिखेंगे। और अगर दोनों नहीं है तो फिर नॉट गिवन करेंगे, हम अपने से एज्यूम नहीं करते। इवन दो वो आपको हमें लग रहा हो, हमारे बाद औक़ात बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो वो बायो के हिसाब से उसको पता हो कि यहाँ पे ये चीज़ सही है या गलत है, लेकिन वहाँ पे नहीं दी हुई तो हम फिर भी नहीं लिखेंगे, हम उसको नॉट गिवन करेंगे अगर नहीं दी हुई तो। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, एवरी वर्ड मैटर्स, find the relevant section in the passage, compare the statement with passage information word by word. Then if you don't can if you cannot find the information after careful searching, it's not given. Don't use outside knowledge. तो ये वाले जो होते हैं ट्रू फॉल्स या यस नो, ये ऑर्डर में नहीं होते। ये कोई पहले पैराग्राफ से होगा, कोई चौथे से होगा, कोई तीसरे से होगा, इस तरह आगे पीछे करके ये दिए होते हैं। कंफ्यूजिंग फॉल्स विद नॉट गिवन, मोस्ट कॉमन मिस्टेक, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। मैंने भी जो मॉक टेस्ट दिए हैं उनमें भी मुझे भी बहुत सी इस हवाले से कन्फ्यूजन रही है कि इंफॉर्मेशन लग रहा होता है कि ये तो फॉल्स है लेकिन वो होती नॉट गिवन है। contradicts with what's written, not given information isn't there। कि अगर वो कंट्राडिक्ट कर रही है जो रिटर्न है तो इसका मतलब है वो फॉल्स है। और अगर नहीं दी हुई फिर हम लिखेंगे नॉट गिवन। किसी और कॉन्टेक्स्ट में दी हुई है तब भी हम नॉट गिवन ही लिखेंगे। एज्यूमिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, ये नहीं करना, ये अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। मिसिंग क्वालिफाइंग वर्ड्स लाइक ऑल, सम, नेवर, ऑलवेज, ये जो हमें वैसे तो लग रहा है ना ऑल एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन आइट्स रीडिंग में ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर जाता है। हमारे यहाँ सही आंसर को गलत करवा देता है, गलत को सही करवा देता है। ये छोटी सी उन्होंने बस एक ऑल ऐड कर देंगे और हमें लगेगा कि ये तो सही है, जबकि वो पीछे जो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग वो सम है, तो वहाँ पे हम गलती कर जाएंगे। एग्जाम्पल दी हुई है, मैनी साइंटिस्ट बिलीव क्लाइमेट चेंज इज एक्सीलरेटिंग। ट्रू क्या है? सम साइंटिस्ट थिंक क्लाइमेट चेंज इज स्पीडिंग अप। फॉल्स क्या है? ऑल साइंटिस्ट एग्री क्लाइमेट चेंज इज स्लोइंग डाउन। यहाँ पे आप देख रही हैं कि सम सिर्फ लगाया है तो वो ठीक हो गया है, ऑल लगाया तो वो गलत हो गया है। एंड नॉट गिवन क्या है? मोस्ट साइंटिस्ट सपोर्ट्स गवर्नमेंट क्लाइमेट पॉलिसीज, कि ये बात तो ठीक कर रहा है वो भी कि सपोर्ट करते हैं साइंटिस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज को इसके हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, लेकिन हमारे पैसेज के हिसाब से वो ठीक नहीं है, तो इसलिए इसको हम नॉट गिवन कर देंगे। देन मैचिंग हेडिंग है। मैचिंग हेडिंग अक्सर ए टू एच तक होता है, वहाँ पे हमने वर्ड नहीं लिखना होता है, नाम नहीं लिखना होता है, बस वहाँ पे वो एक लिस्ट आई होती है, उसी में से हमने ए बी सी सिलेक्ट करना होता है। रीड ऑल हेडिंग फर्स्ट टू अंडरस्टैंड ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ।
ये कल भी बताया था कि ये जो मैचिंग हेडिंग वाला है ना, ये एंड पे रखें, कोशिश करें कि ये आखिर पे करें। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक पूरा पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, फिर उसका एक आइडिया बना लेना है कि ये कौन से आइडिया के साथ मैच कर रहा है। तो इसको एंड पे कोशिश करें किया करें। क्रॉस आउट यूज्ड हेडिंग इमीडिएटली, जो आपकी हेडिंग इस हो चुकी है, जिसको आपने आंसर कर दिया है, उसको क्रॉस कर दें ताकि वो आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि ये भी रहती है। फोकस ऑन ओवरऑल थीम, नॉट स्पेसिफिक डिटेल्स। एक पूरे पैराग्राफ के थीम पे फोकस करना होता है। डू इजियर मैचेज फर्स्ट, लीव डिफिकल्ट वंस फॉर लास्ट। जैसे मैंने भी बताया कि जो इजी है वो पहले करें, जो आपको लग रहा है कि ये तो मुश्किल लग रही है उसको छोड़ दें, उसको एंड पे जाके कर लें। कॉमन ट्रैप्स क्या होते हैं? चूजिंग अ हेडिंग बेस्ड ऑन वन और टू वर्ड्स मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। तो ये एक ट्रैप होता है कि एक दो वर्ड ऐसे वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं कि लगता है ये ही इसका मेन आइडिया है इस हेडिंग का। तो हम उसी पे, जबकि वो आइडिया नहीं होता, वो एक डिस्कस बात कर रहा होता है उसी पॉइंट के इर्द गिर्द। कंफ्यूजिंग अ सपोर्टिंग डिटेल विद इन द मेन आइडिया, कि जो मेन आइडिया है उसके वाले से एक कंफ्यूजिंग स्पोर्ट वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो वो हमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी ज़ाया करती है कि ये तो लग ये रहा है, जब लग तो रहा है कि ये पॉलिसीज़ के हवाले से आइडिया है, जबकि वो पॉलिसीज़ नहीं होंगी, वो कुछ और होगा। नॉट क्रॉसिंग आउट यूज्ड हेडिंग, स्पीडिंग टू मच टाइम सॉरी स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन डिफिकल्ट पैराग्राफ। एक पैराग्राफ बहुत अगर डिफिकल्ट है तो उस पे ज़्यादा टाइम लगाने से हमारा टाइम ज़ाया हो रहा होगा, ना कि हम उससे कुछ गेन कर रहे होंगे। तो इसको एंड पे जा छोड़ दें, पहले बाकी जो हैं वो कर लें, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, लेबलिंग है, वो कर लें। एंड पे जाके इसको देखें कि ये जो तीन चार क्वेश्चन रह गए हैं इनको क्या करना है। मैचिंग इंफॉर्मेशन फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक लाइन में दी होती है, और उसके आगे आप हमने सिर्फ ये लिखना होता है कि ये पैराग्राफ ए से मुतल्लिक है, पैराग्राफ बी से मुतल्लिक है, पैराग्राफ तीन के अकॉर्डिंग है, या पैराग्राफ चार के अकॉर्डिंग है। तो बस एक लाइन में उसको उन्होंने समराइज़ किया होता है, और वो उसी पैराग्राफ की एक लाइन होती है जिसका एक मेन आइडिया बनाया होता है। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मैच करना होता है। ये भी बहुत टाइम लेता है। बाज़ औक़ात एक ही 2-3 पैराग्राफ में सेम तरह की वर्डिंग आ रही होती है, तो वहाँ से कन्फ्यूजन बड़ी हो जाती है। अब हम टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा-सा फर्स्ट पार्ट। स्क्रीन शो हो रही है? टेस्ट की स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर, हो रही है। तो रीलोड करते हैं, टाइम शुरू से लेते हैं। अच्छा, अब सबने इस पहले अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने देखना इसका ये वाली इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे लिखा है वन वर्ड ओनली, सिर्फ एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें कीवर्ड ढूँढने होंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है कि हम पहले कीवर्ड देखेंगे। जी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडीड आर्ट, देन वर्कड एज़ मीन कि उसने काम किया है, और कोई भी प्रोफ़ेशन हो सकता है। उसने मैनेजर काम किया होगा। हम अपनी सीवीज़ में लिखते हैं ना, आई हैव वर्क्ड एज़ अ फ्रीलांसर, आई हैव वर्क्ड एज़ अ डेवलपर। तो इसी तरह यहाँ पे ये इस तरह का वर्ड आएगा, इन सेवरल प्लेसेस इन द यूएस।
देन क्रिएटेड ड्राइंग यूजिंग, तो इसका मतलब है कि उसने क्रिएटेड ड्राइंग जो की है वो कोई ऐसा टूल यूज किया है, कोई ऐसा मटेरियल यूज किया है जिससे ये उसकी एक ड्राइंग की को नई तक़वियत मिली है, नया एक फेस मिला है कि उसने इस तरीके से किया है। मूव टू न्यूयॉर्क एंड बिकेम फेमस फॉर हर पेंटिंग ऑफ द सिटीज। यहाँ पे क्या आ सकता है? सिटीज के साथ कोई ऐसा वर्ड होगा जो इसके साथ रेलेवेंट हो रहा होगा सिटी के अकॉर्डिंग ही। देन वो क्या कह रहा है जी, फोर्थ में क्या है? प्रोड्यूस द सीरीज ऑफ इनोवेटिव क्लोजअप पेंटिंग्स ऑफ, इनोवेटिव पेंटिंग उसने जो बनाई है वो किस हवाले से ज़्यादा उसने बनाई है, जो सीरीज बनाई है वो यहाँ पे कोई वर्ड होगा, कोई चीज़ होगी जिसके हवाले से उसने बात की होगी पैराग्राफ में। went to New Mexico and was initially inspired to paint the many। अब पेंट द मैनी क्या है ये अब वहाँ पे हम देखेंगे कि किस हवाले से उसने सबसे ज़्यादा पेंटिंग की है जब वो मेक्सिको में थी। देन है कंटिन्यू टू पेंट वेरियस फीचर्स दैट टुगेदर फॉर्म द ड्रामेटिक। अब ड्रामेटिक के साथ कोई ऐसा वर्ड होगा जो उसको एम्फिसाइज कर रहा होगा, उसकी पेंटिंग को, उसके कैरियर को, कि इसके अकॉर्डिंग इसने ज़्यादा काम किया है। आफ्टर दैट क्या है जी, ट्रेवल्ड वाइडली बाय प्लेन इन लेटर ईयर्स द पेंट पिक्चर ऑफ क्लाउड्स एंड क्लाउड, और इसके अलावा कोई और चीज़ होगी जिसके हवाले से उसने पिक्चर्स बनाई हैं। ओके, हमने हाईलाइट कर लिए। अब हम यहाँ पे के देखते हैं किस हवाले से है ये। जॉर्जिया ओकैफे, ये एक आर्टिस्ट थी अमेरिकन जिसने आर्ट्स में बहुत ज़्यादा काम किया था, तो उसके हवाले से ये पैराग्राफ है। स्टडीड आर्ट देन वर्कड एज, सो हम यहाँ पे हम इसको एक ग्लिम्स के सर एक ओवरव्यू लेके देखेंगे कि उसके ये वर्क कहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे उसने मेन चीज़ें दी हुई हैं। इसमें मैंने बताया था कि वर्ड जो इसके फिल इन द ब्लैंक्स होंगी वो ऊपर नीचे होंगी, किसी में स्पेसिफिकली नहीं, एक ऑर्डर वाइज नहीं होंगी। फॉर 7 decades was a major figure in American art. Okay. Remarkably, she remained independent from art trend and her work stayed true to her own vision. Okay. ठीक है, यहाँ पे बोर्न यहाँ पे हुई है। उसके बाद ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल एंड एज एन आर्टिस्ट। ओके, शी हैड डिटरमिन्ड, ओके उसने अपना माइंड बना लिया था कि आर्टिस्ट बनना है। शी स्टडीड द टेक्निक पेंटिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो after attending university she became an art teacher। आ गया यहाँ पे वर्ड, उसने किस किस तरह काम किया था। she became an art teacher, यहाँ पे क्या आएगा? टीचर। इन वेरियस प्लेसेस इन द वैसे, सो आगे भी हम देख लेते हैं। टॉट इन एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, तो इसका मतलब वेरियस जगहों पे उसने ये काम किया है। क्रिएटेड ड्राइंग यूजिंग, देन उसके बाद उसने ड्राइंग जो की है उसका हम देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एक्सपेरिमेंट विद क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशन इन चारकोल। ओके, ये अब क्या है कि जो उसने ड्राइंग क्रिएट की थी वो किसके साथ बनाना शुरू किया था? उसने चारकोल के साथ। विच वर एग्जिबिटेड इन द न्यूयॉर्क, ये आगे लिखा हुआ है।
drawing to friend, and then न्यूयॉर्क वर द वर्क ऑफ इवेंट। सो यहाँ पे कि ये न्यूयॉर्क में कि ये फिर जो एग्जीबिशन हुई थी उसमें वो उसने अपने नमूने पेश किए थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूजिंग चारकोल। मूव टू न्यूयॉर्क एंड बिकम ओके पेंटिंग ऑफ द सिटीज। यहाँ पे सिटी के साथ कोई वर्ड यूज होना है, क्या वर्ड यूज होगा देख लेते हैं हम। एग्जिबिटेड ड्राइंग, ओके। Arrived in New York, began an artist, populated numerous। आप देख रहे होंगे मैं पढ़ नहीं रहा, मैं सिर्फ कीवर्ड इसमें से देख रहा हूँ जल्दी जल्दी। ओके, ये हमें यहाँ पे नहीं मिला, तो ये ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हम इसको पीछे भी देख सकते हैं। सर ये समरी कंप्लीशन मोस्टली ऑर्डर्ड में ही होगी, ये इसके आगे ही आंसर आएगा, इसका पीछे नहीं होगा। नहीं, ये ऑर्डर में नहीं है। मोस्टली होता है ऐसा ही है, लेकिन बाद का तो वो आगे पीछे भी उन्होंने किए होते हैं। चलिए सर चेक कर लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम 4 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर हमें जी मिला जी, थर्ड ऐसे वाला ही। तो हम वो कर लेंगे। ओके जी, हम फोर्थ पे चलते हैं। अच्छा, इसमें नहीं है। बाय द एंड 1920 मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्थ वाला क्या है, क्लोजअप पेंटिंग ऑफ प्रोड्यूस द सीरीज ऑफ इनोवेटिंग क्लोजअप पेंटिंग। ओके, कैफे वाज रिकग्नाइज्ड ऑन अमेरिका's most important and successful artist widely known of architecture। ये लग रहा है मुझे तीन का। ड्रामेटिकली डिपिक्ट्स द सोअरिंग स्काई स्क्रैपर्स ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी है तो इसका मतलब है सिटीज स्काई स्क्रैपर्स आएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। अब हम सिर्फ स्काई स्क्रैपर नहीं लिख सकते, स्काई स्क्रैपर्स लिखेंगे। हाईलाइट कर लेते हैं बाद में। देन प्रोड्यूस द सीरीज ऑफ इनोवेशन क्लोजअप पेंटिंग्स ऑफ। क्लोजअप पेंटिंग्स ऑफ किसकी, उसने क्लोजअप पेंटिंग नहीं है। पेंटेड बोटेनिकल सब्जेक्ट्स इंस्पायर्ड बाय एनुअल ट्रिप्स। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोड्यूस द सीरीज ऑफ इनोवेटिव क्लोजअप पेंटिंग्स। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्लावर्स इन हर आएगा। मैग्निफाइड इमेजेस डिपिक्टिंग फ्लावर्स। अब हम सिर्फ फ्लावर नहीं लिख सकते, फ्लावर्स लिखेंगे प्लूरल के साथ। और स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए कोशिश करें कि वहीं से कॉपी करके उधर पेस्ट कर दें। आई थिंक आप सही कह रही हैं कि ये ऑर्डर में ही होंगे ये वाले। सर ये ऑर्डर में ही, सर ज्यादातर ऑर्डर में ही आएंगे, के इसलिए इसका बेनिफिट हो जाता है कि सबसे पहले आप ये करें समरी कंप्लीशन। सही। went to New Mexico and was initially inspired to paint the many, enlarging the tiniest detail, fill in the entire canvas, emphasize abstract composition, help to convey। ओके, ये यहाँ मैक्सिको यहाँ पे आ गया, ये मैक्सिको आ गया। उसके बाद इसने क्या किया जी,
life over the almost trips New Mexico, staying up to 6 months. ये बता रहे हैं कि वो कितना अरसा वहाँ रही। देन ओके फिर न्यू इंस्पिरेशन, ये न्यू इंस्पिरेशन यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये इनिशियली इंस्पायर्ड, तो ये न्यू इंस्पिरेशन ये कीवर्ड आ गया। अब इसके बाद ही इसका आंसर होना है नुमेरियस ब्लीच्ड बोन्स। बोन लग रहा था। नुमेरस सन ब्लीच्ड बोन्स, सन ओके, जहाँ जिन पे सूरज की रोशनी पड़ रही होगी। ओके, बोन्स, बोन्स लिख लेते हैं। पेंट चैट में स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स दो आंसर्स लिख रहे हैं, तो ये वन वर्ड आंसर है, इसलिए हमने हाली बोन्स लिखा है। जी। she came across in the states rugged terrain that's part ओके, ये हो गया। देन क्या है, continue to paint various features that together form the dramatic। ओके, यहाँ पे ड्रामेटिक जैसा कोई वर्ड आएगा जिसके साथ ये उसका आंसर होना है। Later on another variation, large series of pelvis pictures, contrast, convex, concave। It was the region's spectacular lands। ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा जो एक चीज़ आई थिंक कह सकते हैं कि फ़िक्शनेट हो, और जो स्पेक्टेकुलर जो होता है ये भी उसी तरह की एक खूबसूरती का मंज़र पेश करता है। तो ड्रामेटिक का तो इसके मुतबादिल आ जाएगा, और ये साथ लैंडस्केप मुझे लग रहा है। लैंडस्केप, जी सर। सॉरी, लैंडस्केप ऑफ मेक्सिको फॉर 40 इयर्स। जी सर, ये थर्ड लाइन में सर 4 डिकेड्स आ गया ना, तो 40 इयर्स उसमें कवर हो जाएगा। फिर जी, ये यही यही है, ठीक है। ओके हो गया, 40 ईयर इसमें कवर हो गया। देन उसके बाद है जी, ट्रेवल्ड वाइडली बाय प्लेन इन हर इन द लेटर ईयर्स, पेंटेड पिक्चर क्लाउड्स। ओके, यहाँ पे उसका क्या है जी, यहाँ पे उसने घर लिए 200 मीटर 1950s, ये ट्रेवल्ड वाइडली। ओके, यहाँ पे ट्रेवल्ड वाइडली आ गया, इसका ये कीवर्ड आ गया। देन इसके बाद ही आंसर होगा ट्रिप्स मेकिंग मिडल इन फ्लाइंग इन प्लेन इंस्पायर्ड हर लास्ट टू मेजर सीरीज, एरियल व्यू ऑफ रिवर्स एंड। अब आंसर होना है एक्सपेंसिव पेंटिंग। अब एक्सपेंसिव पेंटिंग नाउन तो नहीं है, ऑफ द स्काई व्यूड फ्रॉम जस्ट अबव क्लाउड्स। ओके, ये क्लाउड्स ये आ गया, और ये फिर रिवर है इसका आंसर, रिवर। एंड रिवर्स। ओके, देन हम इस पे चलते हैं। अब ये वाले ऑर्डर में नहीं होंगे, ऐसा ही है ना मैम रबिया? सो फास्ट ये भी मोस्ट प्रोबेबली यही है कि ये ऑर्डर में होंगे। जो ओके, सबसे मेन सर इशू होता है ना, वो मैचिंग हेडिंग में है, वो कभी भी ऑर्डर में नहीं होते, वो हेडिंग जो मैच करनी होती है। तो ट्रू फॉल्स भी मोस्ट यही है कि ये ऑर्डर में होंगे। ओके। अब हम ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको। अच्छा, अभी हम एक नज़र हमने उनको देख लिया था, पैराग्राफ्स को ऐसे ही एक ओवरव्यू ले लिया है। अब हम दोबारा शुरू से जाएंगे, पहले पैराग्राफ से। अब इनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। Exactly. Georgia's style was greatly influenced by the changing fashion in art and over the 7 decades of her career। अब changing fashion एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, मेरे ख्याल से ये कीवर्ड हो सकते हैं। फॉर 7 डिकेड्स, ये 7 डिकेड्स आ गया, इसका मतलब है यहीं पे कहीं आंसर होना है इसका। यहाँ पे ये जी 7 डिकेड दिया हुआ है,
इसका मतलब आंसर यहीं से शुरू हो रहा है कहीं ना कहीं। जॉर्जिया कैफे was a major figure in American art. Remarkably, she remained independent from shifting art trends, and her work stayed true to her own vision. Greatly influenced by the changing fashion in art over the okay. और यहाँ पे क्या लिखा है? Was a major figure in American. Remarkably, she remained independent from shifting art trends, and her work stayed true to her own vision, which was based on finding the essential abstract forms in nature. Okay, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटली इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस हुई थी चेंजिंग फैशन से, जबकि यहाँ पे जो इसका आंसर लिखा हुआ है रिमार्केबली शी रिमेन्ड इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट रही अपने काम के साथ, वो उसने कोई फैशन को फॉलो नहीं किया कि किस तरह लोग ट्रेंड किया जा रहा है, उसने अपने अकॉर्डिंग इस अपने काम को किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। अगर वो यहाँ पे लिखा होता है कि शी इन्फ्लुएंस या शी इंस्पायर्ड बाय फैशन इंडस्ट्री, तो फिर इसको फिर ये ट्रू होता। यहाँ पे उसने बकायदा बता दिया है कि वो इंडिपेंडेंट रही है अपने काम के साथ, उसने किसी को फॉलो नहीं किया। देन सेकंड वन है जी, व्हेन कैफे फिनिश्ड हाई स्कूल। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो हाई स्कूल जहाँ पे शुरू हो रहा था वहां पे इसका आंसर होना है, यहाँ पे कहीं फिनिश्ड हाई स्कूल she had already made her mind up about the career that she wanted, career she wanted, कि उसने अपना माइंड पहले ही बना लिया हुआ था जब उसने हाई स्कूल कंप्लीट किया था। यहाँ पे कहाँ है जी? ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल। ओके, she had determined to make her way as an artist. शी हैड डिटरमाइंड यानी उसने अपने आप को एक तय्युन कर लिया था कि वो किधर जाएगी। मेड एन वर्क एन एज आर्टिस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी यही लिखा है कि उसने जब फिनिश कर लिया तो उसने ऑलरेडी माइंड बना लिया हुआ था, तो यहाँ पे भी यही लिखा है शी हैड डिटरमाइंड टू मेक हर वे एज एन आर्टिस्ट, कि वो खुद को एक आर्टिस्ट के तौर पे देखना चाहती थी। नेक्स्ट कौन सा है जी? अल सॉरी, Alfred Stieglitz first discovered Okaefe's work when she went some abstract drawing to his gallery in New York. ओके, यहाँ पे कहीं न्यूयॉर्क जहाँ पे आएगा ना वहां से शुरू होना है ये आंसर इसका। ये अल्फ्रेड स्टिग्लिट्स आ गया। अब इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। She went some of these drawing to a friend. She sent some of these drawings to a friend in New York who showed them to art collector and photographer Alfred Stieglitz in January 1916. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? First discovered Okaefe's work when she went some abstract drawing. She sent some abstract drawing to his gallery. यहाँ पे लिखा है कि उसने खुद कैफे ने खुद अपनी जो ड्राइंग्स थी एब्स्ट्रैक्ट थे वो स्टिग्लेट्स की गैलरी में भेजे थे, जबकि यहाँ लिखा है कि उसने अपनी किसी दोस्त को भेजे थे जिसने आगे फिर अल्फ्रेड स्टिग्लेट को दिखाई थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये आंसर ठीक है या गलत है या नॉट गिवन है? एनीवन फ्रॉम द चैट? अरूष ने बताया फॉल्स है ऑप्शन। जी, ये फॉल्स है, क्योंकि उसने आगे बेशक लिखा है कि अल्फ्रेड
स्टिग्लिट्ज़ ने उसकी जो एग्ज़िबिशन थी वो करवाई थी, लेकिन उसके पास पहुँची कैसे थी? वो किसी दोस्त के ज़रिए पहुँची थी, जबकि यहाँ पे लिखा है कि उसने खुद जब विज़िट किया तो उसने उस गैलरी में जाके वो अपने एब्स्ट्रैक्ट दिए थे। एग्जैक्टली सर, इसमें स्टूडेंट्स के लिए यही है कि जब क्वेश्चन पढ़ें तो उसका उर्दू में ज़रूर उसका तर्जुमा करें, और इसी तरह से फिर इधर जब पढ़ें तो वो तर्जुमा करें। जैसे आपने जी। पहले उसको उसका मीनिंग पढ़ा, फिर उसके बाद आप इधर आए हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रह जाएगा कि ये बोल क्या रहे हैं, एज कम्पेयर टू जी, डायरेक्ट आप एग्ज़ैक्टली। आंसर ढूंढ रहे हो। Okay, Okafe was the subject of Stieglitz's photographic work for many years। कि ओकेफे जो है वो स्टिग्लिट्ज़ की फोटोग्राफिक में एक सब्जेक्ट के तौर पे रही है काफ़ी अरसा। और यहाँ पे अब देखते हैं हम इधर, 1 मिनट हम इसको ना हाइलाइट यहाँ से कर लेते हैं। फोटोग्राफिक वर्क एंड मैनी इयर्स। यहाँ पे है जी, स्टिग्लिट्ज़ वाज़ इम्प्रेस्ड एंड exhibited द ड्राइंग लेटर देन दैट ईयर एट हिज गैलरी इन on Fifth Avenue, New York City, where the works of uh, many क्या लिखा हुआ है, एवेंट ग्रेड। मैम ये वर्ड क्या है यार, प्रोनाउंस नहीं हो रहा मुझसे ज़रा। एवेंट गार्ड। इवेंट कार्ड। एवेंट गार्ड, ओके ओके। Avant-garde artists and photographers were introduced to the American public। ओके, यहाँ पे मैनी वगैरह का जिक्र नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये हम देखते हैं, विद स्टिग्लर इंकरेजमेंट एंड प्रोमिस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, कैफे अराइव न्यूयॉर्क। अभी न्यूयॉर्क में ही है। फॉर द नेक्स्ट थ्री डिकेड्स फॉर द नेक्स्ट थ्री डिकेड्स स्टिग्लर vigorously promoted her work in 22 solo exhibitions and numerous group installations। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्टिग्लिट्ज़ ने उसके काम को प्रमोट किया अगले काफ़ी सालों तक, 3 दहाइयों तक। 3 डिकेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैनी इयर्स। तो इसका मतलब है काफ़ी साल तो ये हो गए, और उसके काम को स्टिग्लिट्ज़ ही ज़्यादा प्रमोट करता रहा। तो इसका क्या मतलब है? ये भी करेक्ट है। देन उसके बाद है जी 12, कैफे पेंटिंग ऑफ द पेशियो ऑफ हर हाउस इन अबेक्की वर अमंग द आर्टिस्ट फेवरेट वर्क्स। अब इसने वो एक जगह पे लिखा हुआ था कि इसने 2 घर खरीदे। आई थिंक एंड पे था कहीं शायद। ये इसने 2 घर खरीदे थे जहाँ पे, यहीं पे कहीं इनका आंसर होना है। O'Cafe eventually owned 2 homes in New Mexico. The first, her summer retreat at Ghost Ranch, was nestled beneath 200-meter cliffs, while the second, used as her winter residence, was in the small town of Abiki. While both locales provided a wealth of imagery for her paintings. One feature of the Abiki house, the large walled patio with its black door, was particularly inspirational. In more than 30 pictures between 1946 and 1960, she reinvented the patio into an abstract arrangement of geometric shapes। अब यहाँ पे उसने कुछ उसकी रीइन्वेंशन की थी आइडियाज़ के ज़रिए ज्योमेट्रिक शेप्स में। और यहाँ पे क्या लिखा है? ओ कैफे पेंटिंग्स ऑफ द पेशियो ऑफ हर हाउस इन बैकी वर अमंग द आर्टिस्ट फेवरेट वर्क। तो यहाँ पे कहीं भी इसने ये नहीं लिखा हुआ कि वो आर्टिस्ट के फेवरेट वर्क में नुमाया रहा है उसका ये वाला घर। जबकि उसने अपने घर के हवाले से बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हैं, 30 पिक्चर्स उसने बनाई थी, जो काफ़ी
उसने ज्योमेट्रिक शेप के ज़रिए उसको प्रेज़ेंट किया, लेकिन जो सर इसका जो आर्टिस्ट थर्ड जी लास्ट मैम। वाली सर इसका जो थर्ड लास्ट पे है जी, जी। लाइन में, उसमें आंसर नहीं इसका लग रहा। ये वाला थर्ड एब्स्ट्रैक्ट में, थर्ड लास्ट में, थर्ड लास्ट ये में ब्लैक डोर में। द जी जी लार्ज जी। वॉल पेशियो विद इट्स ब्लैक डोर, वो उसके घर की बात हो रही है। वन फीचर ऑफ द अबेक्की हाउस द लार्ज वॉल्ड पेशियो विद इट्स ब्लैक डोर, कि जो उसके घर की दीवारें थी उनमें जो ब्लैक दरवाजा था उसके वाले से बात हो रही है कि वो एक नुमाया चीज थी। और इमेजरी यहाँ ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्थ ऑफ इमेजरी ऑफ हर पेंटिंग्स, कि उसकी अपनी ये एक तख्लीक थी कि उसने इसको इस तरह बनाया था कि घर की दीवारें ऐसे पेंट की हुई थी और दरमियान में ब्लैक डोर था जो ओके। उस बहुत नुमाया था। जबकि यहाँ पे लिखा है कि वो उमंग द आर्टिस्ट फेवरेट वर्क, आर्टिस्ट के फेवरेट वर्क में रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर यहाँ पे नहीं मेंशन दिया नहीं हुआ है है, इसमें। तो एग्जैक्टली। ये नॉट गिवन होगा क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है। अब फेवरेट एग्जैक्टली। आर्टिस्ट की बात ही नहीं हुई हुई है इस पैराग्राफ में। देन जी 14th है, कैफे प्रोड्यूस्ड अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वर्क ड्यूरिंग द 1950 टू 1970 देन एट एनी अदर टाइम इन हर लाइफ। तो उसने 1950 टू 1970 में बहुत ज़्यादा उसका जो काम है वो फेवरेट रहा है बाकी उसकी ज़िंदगी से। यहाँ पे ये 90, 50 और 70 आ गया, इसी को देख लेते हैं। वो कैफे ट्रेवल्ड वाइडली, मेकिंग ट्रिप्स टू एशिया एंड द मिडल ईस्ट एंड यूरोप, flying in planes inspired her last two major series, aerial view of rivers and expensive paintings of the sky viewed from just above clouds. In both series, Okafe increased the size of her canvas, sometimes to moral proportions, reflecting perhaps her new expanded view of the world. When in 1950 she successfully translated one of her cloud motif to a monumental canvas measuring 6 meters high. ओके, यहाँ पे इस हवाले से कोई बात नहीं की जा रही कि उसका ये बताया गया है कि उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया इन 20 सालों में और उसने 2 मेजर सीरीज़ जो हैं वो भी बनाई थी, रिवर्स की, क्लाउड्स की, जो उसको एरियल व्यू से नज़र आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे उसका ये कहीं नहीं ज़िक्र हुआ कि उसका जो ये 20 साल का वर्क था वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ है, कि उसकी बाकी लाइफ़ से बहुत ज़्यादा ये फ़ेमस हुआ है। बाकी लाइफ़ का उसका वर्क तो फ़ेमस आई थिंक तब हुआ था जब वो न्यूयॉर्क वो थी इसमें मेक्सिको में, जो उसने ये बनाई थी फर्स्ट उसने बनाई थी सन एग्जैक्टली। ब्लीच्ड बोन्स वाला, ये ज़्यादा फ़ेमस हुआ था उसका। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था, 1 मिनट में देखता हूँ। ये इट वाज़ द नुमेरस सन ब्लीच्ड बोन्स शी कम, ये इंस्पायर इससे बहुत ज़्यादा लोग हुए थे इसके वर्क से। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये आंसर नहीं दिया हुआ। ये 1965 वाला जो है, सॉरी 1970 टू 50 टू 97, तो ये भी नॉट गिवन है कि ये यहाँ पे इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसका ये काम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। अब इसको हम चेक कर लेते हैं सबमिट करके। जी 13 हमने किए हैं और जी 13 सारे ठीक आ गए हैं। पहला टीचर है, यहाँ पे अब इसकी ना समरी भी आ रही होगी, ये देखिएगा। ये है पहला टीचर, ये वाला, ये भी कामा टीचर। देन चारकोल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है चारकोल, ये उस
हेड हाईलाइट हुआ है। देन उसके बाद सिटीज स्काई स्क्रैपर, थर्ड वन किधर है? ये मैम सही कह रही थी कि ये ऑर्डर में ही होंगे, तो इससे हमें मिल भी जाएंगे ये न्यूयॉर्क स्काई स्क्रैपर आ गया। देन पेंटिंग ऑफ फ्लावर्स, ये पेंटिंग ऑफ फ्लावर आ गया। देन उसके बाद फिफ्थ वन है जी बोन्स, ये सन ब्लीड बोन्स आ गया। आफ्टर दैट ड्रामेटिक लैंडस्केप, ये स्पेक्टेकुलर लैंडस्केप आ गया। ये कोई ना कोई वर्ड उन्होंने ना पैराफ्रेज किया होगा। देन उसके बाद सेवंथ है रिवर्स, ये आ गया जी रिवर्स एंड क्लाउड, क्लाउड उन्होंने दिया हुआ है, रिवर हमने नोट किया है। आफ्टर दैट ट्रू फॉल्स में आ जाएं जी 8 पे, ये फर्स्ट वन रिमार्केबली ही रिमेन इंडिपेंडेंट, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि फैशन चेंजिंग, फैशन से वो इंस्पायर हुई थी, तो ये फॉल्स है। देन उसके बाद उसने अपना माइंड बना लिया था कि शी वांट टू बिकम आर्टिस्ट, तो नाइन्थ में ये शी डिटरमिन्ड आ गया, ये भी ठीक है। देन 11th पे 10th पे है अल्फ्रेड स्टीगलिट्ज़ ने उसकी प्रमोशन की थी। उसने खुद उसको जाके अपनी आर्ट्स दिखाई थी, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने किसी अपनी दोस्त के ज़रिए उसको भेजी थी, तो ये गलत है। Then the next 30 for 30 years स्टीगलेट वाज द मेन प्रमोटर, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 11th पे, ये स्टीगलेट रिकॉर्डर सेलिब्रेटेड ब्लैक एंड वाइट, तो ये उसका प्रमोटर रहा है। आफ्टर दैट 12th किधर गया? 12th यहाँ पे होगा कहीं, ये 12th नॉट गिवन है, तो यहाँ पे लिए इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आती है, यहाँ पे दी होगी, ये देखिएगा। Reason for correctness: the correct answer is not given because the passage talks about Okafe painting of the patio but does not say whether they were her favorite. It only mentioned that she created more than 30 pictures of the patio. एंड द नॉट, ये जब आप करेंगे ना, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको एक और व्यू मिलेगा कि उन्होंने गलत क्यों कहा है या नॉट गिवन क्यों कहा है। ट्रू फॉल्स तो हम देख सक पता चल जाता है कि गलत है या ठीक है। नॉट गिवन जो है ना, इसको लाजमी एक दफ़ा पढ़िएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको लाजमी इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ा करें, ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्यों उन्होंने नॉट गिवन किया इसको। The correct answer is not given because the passage does not say if Okafe created more artwork in the 1950 and 1970 compared to other years. It is only mentioned that she traveled a lot, कि इन दिनों में उसने ट्रैवल बहुत किया था। सो गाइस, कल इंशाल्लाह हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, और जो कुछ आगे मैचिंग हेडिंग्स वाले क्वेश्चन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसको देखेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम फिर क्लास का टाइम एंड हो गया, हम ख़त्म करते हैं इसको। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क।